Namaste everyone. I'm Dr. Alma Zaman welcoming you at Navratri Health Series by Ratanveer Nature Cure and Taramati Wellness Center. And today we are celebrating the color red. Naturally, by color red, we think of energy, love, passion, and life itself. And in our body, red color is symbolized by blood, heart, and circulatory system, which helps us to keep alive, vibrant, and joyful. And also, we can think circulation of the blood as a representation of the prana. Why? Because we can't see prana or vitality, but we can see the circulation of the blood. So, why does this circulation matter so much? It is not just about the circulation of the blood. Via this, our body circulates the essential nutrients and oxygen to all the cells of the body and excrete out or eliminate the toxins and the waste product from our body, and also sends the hormone to the certain area and balances the temperature throughout the body. If our blood circulation is proper, we feel energetic and active both physically and mentally. But if our circulation is less or somewhere compromised, we feel less active or lethargy throughout the day. And we can also face certain serious health conditions like hypertension. Out of every 4%, 1% is suffering from hypertension. Secondly, same important yet opposite condition is low BP, which we generally ignore thinking as general dizziness or fainting. Thirdly, coronary artery diseases, or in common term we can think of blockage of the coronary arteries. And lastly, some peripheral artery conditions like deep vein thrombosis, varicose vein, and certain poor circulatory problems. So we can think of in this way that our heart beats more than 1 lakh times in a day to circulate the blood throughout the body. But how often do we stop to take care of our heart? Let me tell you one interesting thing. In functional medicine, the inner lining of our blood vessel, which is called as endothelial, is called as the guardian angel. Why? Because it secretes certain chemicals which helps our blood vessel to get relaxed and keeps it in dilated state. And also it protects the clot formation or the cholesterol deposition in our blood vessel. So the health of the endothelium is directly related to your heart health. If our heart health is improper, there are chances of coronary artery diseases. Endothelial health prevents the risk of heart attack and stroke. In India, coronary artery diseases is one of the leading cause of death and the morbidity, जो हमारी quality of life को reduce करता है. So आखिरकार इसका कारण क्या है, root cause क्या है? Because in naturopathy we just don't treat the symptoms or condition, we also work on the root cause. So one of the leading cause of the any kind of cardiovascular or heart condition is poor diet. पुअर डाइट से सिर्फ हमको ये नहीं समझना है कि नाउ इट इज़ अ कॉमन टर्म लाइक हम पुअर डाइट बोलते हैं. नो, पुअर डाइट मीन्स वी आर मोर ईटिंग द वेस्टर्न फूड. We are more inclined to the Western food, which is high in calorie, less or lacks essential nutrients, and it has more preservatives and packed food. Lack of exercise or having a sedentary lifestyle, ये हमको एक दिन में कोई problem नहीं create करता है, but eventually if we are living a sedentary lifestyle, our capacity of the heart or the functioning of the heart is reduced, its blood circulation is reduced. So we have to take care that we have to move at least 30 minutes a day. Next, suppressed emotion or constant emotional strain. When we are thinking about heart, there is one thing that comes in our mind is heart is directly related to our emotion. If any suppressed anger or any kind of sadness you are feeling, it directly affects your heart first. And it can be a cause of poor circulation or any kind of heart diseases, not in one day, but yes, if you are continuously under some kind of emotional disturbance, this can happen. Improper sleep hygiene. If you are sleeping late, it doesn't give you any kind of benefit, but it slows down the repair of our body, which is eventually going to affect our heart health.
So naturopathy works in all the dimension to improve your heart health and the circulation of your body. So if we are talking about the diet, firstly, to reduce the bad cholesterol or LDL from your blood, you have to include more fibers in your diet, add more millets and oats, and secondly, add more protein in your diet, legumes, pulses, nuts and seeds. It will help you to strengthen your heart. Nuts and seed is a good source of omega-3 and good fats. When coming to reducing blood pressure, potassium rich food and magnesium rich food works wonders. You can get potassium from coconut water, spinach, banana, etc. And magnesium, seeds and nuts, dark chocolates and broccoli is a good source of magnesium. For strengthening your heart muscle and boosting the circulation, include more polyphenol and CoQ10 rich food in your diet. You can get CoQ10 from spinach, sesame seeds, peanuts, broccoli, etc. and more polyphenol from berries, citrus fruit, pomegranate and green tea. And include more omega-3 rich food from flax seeds, chia seeds, walnut, almonds, etc. This will help to improve your circulation and strengthening the heart. Try to cook your food with these two oils, that is coconut oil and ghee, and avoid packed food and avoid 3 white substances, that is white sugar, maida and excessive salt, and include more antioxidant rich foods. Avoid junk, preservatives and packed food as well. There are certain juices that is helpful in your heart conditions. You can note it down. Number 1 is green juice. There are 3 green juices that is good for your heart health. Number 1 is Dudi Pudina juice. Number 2 is Amla and carrot juice. Number 3 is green apple, cucumber, coriander and lemon juice. These all help in lowering the bad cholesterol or LDL from your blood. And secondly, to generally strengthen your heart muscles and boost circulation, pomegranate juice is very good. For high BP, beet, carrot and ginger juice works wonders. There are also certain herbal teas that you can add to strengthen your heart. Is number 1 is hibiscus tea. Number 2 is ginger and cinnamon tea. Number 3 is turmeric tea and tulsi tea. And 4th, which is rich in antioxidant, is green tea. These you can add in daily basis 1 or 2 cup daily, as they are rich in antioxidant and anti-inflammatory in nature. Also, regarding lifestyle changes, try to walk at least 30 minutes a day. Walking is the best exercise for your heart. It boosts the circulation, promotes the heart health, and barefoot walking in the grass works wonder. It naturally thins your blood. If you are on blood thinner, that is great. If you are having high cholesterol, barefoot walking 30 minutes in the grass will naturally thin your blood. Secondly, maintain healthy weight. If you are overweight, try to reduce your weight by 5 kg. It will reduce the risk of heart attack. Nextly, one therapy that works wonder and act as a vasodilator of your blood vessel is laughter therapy. If you are laughing out loud, it helps to dilate your blood vessel by 30%, and it is keeping it as dilated state for more than 45 minutes. When coming to the hydrotherapy part of the naturopathy treatment, one therapy that is very helpful to reduce your hypertension and boosting your heart health is hot food bath with Epsom salt, in which you are soaking your feet in hot water for 20 minutes. It works wonder. So guys, try these tips to improve your heart health and boost your circulation. So stay tuned with us in this Navratri Health series. Till then, keep your heart healthy and stay happy. Thank you. तो हमारे संस्थान की ओर से जैसा कि इस नवरात्रि 2025 नवरात्रि दुर्गा पूजा के लिए हम आपको रंगों के माध्यम से अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा को आप सभी के बीच में पेश कर रहे हैं। उसके बारे में जो रंगों के साथ
कैसे मेल मिलाप होता है प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा का, उन सब के ऊपर लगातार हमारे डॉक्टर्स भी आप लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने नवरात्रि के 9 दिन लिए और उन 9 दिनों को हमने 9 रंगों के रूप में देखा। हमने कई सारे रंगों के ऊपर बात की। हमारे डॉक्टर्स ने जैसा कि मैंने कई यौगिक अभ्यास प्रैक्टिसेस आप लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है। तो आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे लाल रंग की, रेड कलर। यानी कि रेड कलर जो है वो उत्साह का रंग है, हमारे आत्मविश्वास का रंग है, हमारी स्थिरता का रंग है। तो जब हम इस नज़रिए से इस रंग की ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर योग हमें कैसे हेल्प कर सकता है, योग के वे कौन कौन से अभ्यास हैं जिनसे हम अपने शरीर में मौजूद उस ऑर्गन्स को, जो कि लाल रंग का द्योतक है, यानी कि जो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होता है थ्रू द रेड कलर। सबसे पहले बात करें तो शरीर में हमारे 7 चक्र हैं, जैसे कि ये सब हमारे एनर्जी पॉइंट बोल सकते हैं कि कुछ एनर्जी का एक स्थान घेरे हुए हैं। और इनकी जो आकृति है वो कहीं ना कहीं एक व्हील की तरह बताई जाती है और इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा को, एनर्जी को सिर्फ फील कर पाते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। तो जब हम बात करते हैं लाल रंग की, तो शरीर में वह कौन सा चक्र है जो लाल रंग का द्योतक है, जो हमारा मूल आधार है, हमारी स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा, जिसे हम मूलाधार चक्रास भी बोलते हैं, हमारा बेस है। यहीं पर हमारी सारी शक्तियां मौजूद हैं। तो इस चक्र की यदि ऊर्जा, एनर्जी यदि हम एक्टिवेट करते हैं योग के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास, उत्साह देखने को जरूर मिलेगा। तो इसी सीरीज में आज हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे कि कैसे हम अपने शरीर में उत्साह और अपना जोश, अपना जो जुनून है, उसे अपने जो नियमित कार्य हैं हमारे, या हमारे जो एम्स हैं, उसमें उस ऊर्जा को खर्च करें और हम जीवन में सफल हो गए। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे साथियों, अपने स्थान पर एक मैट ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे सभी लोग और अपने शरीर की चौड़ाई के बराबर, जैसे कि आप मेरे पैरों को देख रहे हैं, उतना दूरी पर रख लें और दोनों पैर के पंजों को सीधा स्ट्रेट रखना है। पंजे को तिरछा नहीं रखना, ना तो अंदर की तरफ और ना ही बाहर की तरफ। पंजा स्ट्रेट, सीधे खड़े हों। एक गहरा लंबा श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा उठाएं और अपने ग्लूट रीजन, अपने थाइस को टाइट करते हुए, स्क्वीज करते हुए लोअर बैक से जितना हो सके पीछे झुकें। सांस अंदर ही रुका रहेगा। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आए। श्वास लेते हुए फिर से स्क्वीज करते हुए ग्लूट रीजन, थाई रीजन को कॉन्ट्रैक्ट और लोअर बैक रीजन। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आए। ऐसा 4 से 5 बार इस अभ्यास को करें, जिससे आपकी बैक तो स्ट्रांग होगी। साथ में हम जो रंगों के माध्यम से जिन प्रैक्टिसेस को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल प्रोलाइन पोजीशन में। प्रोलाइन पोजीशन में लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा रखें। पैर के पंजे और एड़ियों को आपस में मिला के रखें। घुटना नहीं मोड़ना, पैरों को लूज नहीं करना। दोनों हथेलियां चेस्ट के बगल में रखें। गर्दन सीधी रखें। गर्दन पर कोई तनाव या स्ट्रेन नहीं देना। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेकर लोअर बैक से ताकत लगाते हुए ऊपर उठाएं अपर बॉडी को। सामने देखें, दृष्टि सामने की ओर रखें और अपने लोअर बैक पर कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्शंस फील करें। अपने ग्लूट रीजन यानी कि आपका जो हिप्स एरिया है उसे स्क्वीज करके रखें। जब आप अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका स्पंदन आपके मूलाधार चक्र की ऊर्जा को प्रभावित करता ही करता है। तो इस अभ्यास को जरूर करें। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद
धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आना। शरीर को सामान्य स्थिति में लेकर आ जाएं। एक बार और इसी अभ्यास को दोहराने का प्रयास करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने ग्लूट रीजन को स्क्वीज करते हुए लोअर बैक को कंप्रेस्ड करके रखें। कुछ समय के लिए रुके रहें यहाँ पे, इस कंप्रेशंस और ग्लूट रीजन के कॉन्ट्रैक्शंस को फील करते हुए। फिर एक्सेल करते हुए लोअर बैक को रिलैक्स करें, अपने ग्लूट रीजन को ढीला छोड़ें और कुछ समय के लिए बॉडी को रेस्ट दें। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस। शरीर और श्वास की गति को स्वाभाविक होने के बाद दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर शशांक आसन की स्थिति में बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। जो कॉन्ट्रैक्शंस दिया उसका काउंटर पोज हमेशा हर प्रैक्टिस के बाद जरूर करें। कुछ सेकंड शशांक आसन में रहने के बाद धीरे से वज्रासन में आ जाएं और फिर आप सुख आसन की स्थिति में बैठें। शरीर की सामान्य स्थिति, रिलैक्स रखें बॉडी को। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, हाथों को रेस्ट देते हुए रखें ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। अब आप अपने आप को इसी क्रम में जीवन में उत्साह को बनाए रखने वाला रंग यानी कि लाल रंग, तो कैसे योग के माध्यम से हमारे जीवन में वो मोटिवेशन आए, वो कॉन्फिडेंस आए, जिसके लिए हम क्या यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो इसी क्रम में एक और अभ्यास ऐड करेंगे कि डेली भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें, जिसमें आप सुखासन की स्थिति में बैठें। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो कुछ सेकंड्स के लिए शरीर और मन को शांत करें। सबसे पहले शरीर और मन जब स्वाभाविक हो जाएं तब प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, श्वास अंदर लेते हुए फोर्स के साथ दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना और श्वास छोड़ते हुए फोर्सफुली दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए हाथों को नीचे लाना, लेकिन बॉडी को नहीं हिलाना। सिर्फ आर्म मूवमेंट्स के साथ इस प्राणायाम को कीजिए। अभ्यास को रोक दें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, श्वास की गति को सामान्य होने दें, शरीर में आए परिवर्तनों को देखें। इन सभी आंतरिक क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन आपके मानसिक पटल पर चलते रहना चाहिए। जब शरीर और मन दोनों स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं, इसी अभ्यास को फिर से स्टार्ट करेंगे और कम से कम 3 से 4 राउंड में भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, भस्त्रिका प्राणायाम एक हीटिंग प्राणायाम है, तो कोशिश करें कि जब गर्मी ज़्यादा हो तब इसका अभ्यास ना करें, या बीपी बढ़ा हुआ हो तब इसका अभ्यास ना करें, या फिर और कोई दूसरी सीवियर कंडीशंस में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास ना करें।
तो आपके जीवन में लाल रंग की तरह उत्साह भरे। उसी क्रम में हमने भस्त्रिका की बात की, हमने भुजंग आसन की बात की, हमने हस्तोत्थान आसन की बात की। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो हम एक ध्यान का अभ्यास भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एक मेडिटेशन टेक्निक्स भी ऐड कर सकते हैं। प्राणायाम अभ्यास के बाद शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखें। अपनी दोनों आँखों को बंद कर लें, आँखों के ऊपर कोई तनाव ना रहे और एक स्थिर शारीरिक अवस्था में बैठे रहिए। शरीर में कोई तनाव उत्पन्न ना हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन ना बने बॉडी में। यदि बनती है तो उसे रिलीज करें और रिलैक्सेशन पोज में बैठें। शरीर को स्थिर बनाए रखते हुए ध्यान केंद्रित करें श्वासों की गति के ऊपर। श्वासों का ध्यान और ख्याल कीजिए मानसिक रूप से। धीरे धीरे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को शांत और स्वाभाविक हो जाने दें। जब एक बार आपका शरीर शांत और स्थिर अवस्था में आ जाता है, तब आप अपना ध्यान केंद्रित करें शरीर के उन हिस्सों पर जो जमीन के संपर्क में हैं, दोनों नितंब, दोनों जंघाएं। इनके आसपास के एरिया को मानसिक रूप से ऑब्जर्व करते जाइए। शरीर का भार इन्हीं हिस्सों पर टिका हुआ है। उस शारीरिक भार को, बॉडी वेट को ऑब्जर्व करते जाइए और धीरे धीरे अपना ध्यान मध्य में लेकर आ जाएं, दोनों नितंब के बीच में, जिसे हम मूलाधार बोलते हैं। और अपने मूलाधार पर लाल रंग की कल्पना करते हुए यहाँ की ऊर्जा को, एनर्जी को मानसिक रूप से महसूस करते जाइए। सर्वप्रथम तो अपने आप को कंसंट्रेट करें उस पर्टिकुलर जगह पर। विजुलाइज कीजिए उस क्षेत्र को और कुछ समय के लिए यहाँ पर ध्यान मग्न होते हुए अपनी ऊर्जा को महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई महसूस हो रही है। अन्य किसी और चीज के ऊपर अपने ध्यान को लेकर ना जाएं। इस अवस्था में अपनी क्षमता अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो सुटेबल टाइम आप लोगों के पास है, इस ध्यान का अभ्यास नित्य करें, रेगुलर करें, जिससे कि आपके शरीर में लाल रंग की तरह उत्साह और आत्मविश्वास की वृद्धि हो। तो इस नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर मैं योगाचार्य मनीष उपाध्याय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके लिए तारामती और रतनवीर नेचर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।